चेक करवा दो। अब ओके सर, प्लीज चेक। ठीक सही होना चाहिए। वो कलर में कम नहीं है। देखो तो कलर बंद करो। बैटरी पे लगा हुआ है। इससे ये लगाना। सो आप ही लोग बताइए कौन सा ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। So whenever audit comes, वो कौन सा ऑर्डर को देख लेगा। And everyone knows that procuring everything to them is not simple. So ये जो ऑर्डर आया था 22 वाला, नहीं सही है। इसको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। ओके, जो जेम में है वो जो भी गुड्स और सर्विसेज होगा वो जेम से ले सकते हो। एंड वर्क्स के बारे में बिल्कुल मेंशन नहीं। इन्होंने मेंशन किया था वर्क्स के बारे में, वो क्या था, सिविल वर्क्स। सिविल वर्क्स आउटसाइड जेम कैन बी प्रोक्योर करके लिखा है। मतलब वर्क्स नॉट ओनली, मान लो कोई इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया, यू कैन सी हाउ absurd our orders are. मान लो आई जस्ट वांट टू रिपेयर, आई जस्ट वांट टू डू सम इलेक्ट्रिकल रिपेयर, इज इट पॉसिबल टू डू दैट थ्रू जेम? मान लो मुझे छोटा मोटा रिपेयर करना है, जेम से कर सकते हैं उसको, कर भी मान लो 4-5 हजार का काम, जेम से कर सकते हैं उसको। उसके अलावा करना भी तो कैसे करोगे, यहाँ पे दो फॉर कस्टम, उसको 10-15 दिन टाइम दे दो, बिल्स आएगा, उसको एवल्यूएट करो। तो मेरा कहने का मतलब ये है, sometimes the orders, whoever release the order, they should always think about all the practical scenarios. ऐसे एक ऑर्डर निकाला बट इसको कोई चैलेंज नहीं किया, who has released this order? IFB section. इसको कोई no one has challenged. CW मंत्रालय के अंदर we have CWC, CGWB, every ब्रह्मपुत्र board, so many boards, so many organizations are there, but no one has challenged. मैं ऐसे नहीं बोल रहा मंत्रालय जो कि गलत है, probably they may not have the perception of the issues of each. Someone should flag them, then only they will understand. They could withdraw this order. Nevertheless, ये जो order issue किया था, it's kind of slight modification of what GFR says. अगर GFR के ऊपर कोई भी मॉडिफिकेशन, कोई भी इंटरप्रिटेशन निकालना है, वो कौन कर सकते हैं? ओनली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नाइदर मिनिस्ट्री कर सकते हैं, ना ब्रह्मपुत्र बोर्ड कर सकते हैं, ना कोई दूसरा मिनिस्ट्री। सो फिलहाल आप इस ऑर्डर को इग्नोर कर सकते हो। वी हैव टू फॉलो ओनली द GFR fundamental rule, and every audit party goes by this. Now, here I have talked about two terms, purchase and procurement. These are all not new things, सबको पता ही होगा. So when you buy something at your personal level, you use the word purchase. But in government, we always use the word procurement. Like I have mentioned in this slide, purchase क्या होता है? It is just act of buying. और procurement क्या होता है? It is the entire process. ऐसा नहीं कि हम I need to purchase some AC, ऐसे ही बाहर मार्केट में गया हो लेंगे, ऐसा नहीं होता है गवर्नमेंट में. We have to take the approval first. We have to prepare an estimate, and we have to take the approval of competent authority. Then only we can purchase. Okay, so the procurement involves not only involves the process, not only during the time of purchase, before purchase or after purchase. In simple words, procurement involves steps taken before, during and after the purchase. Okay, I mean in simple words, purchase is just a component of procurement. That is the reason why at our personal level, if you are purchasing something, we always use the word I purchase a laptop, I purchase a computer like this. But when you are purchasing something for government, we never use the word purchase. We always use the word procurement. Purchase word कभी भी नहीं आना चाहिए. कोई भी हम फाइल पुटअप करते हैं, we should never use the word purchase. We should always use the word procurement.
procurement of 10 number of computers, procurement of so and so services, procurement of car, procurement of so and so, equipment. We should use the word procurement. Now, so we basically have three types of procurement: goods, services, and works. Okay. Basically, तीनों के बीच में थोड़ा बहुत अंतर है. We should all aware of this. Even GFR also says that your GEM is mandatory if the goods and the services are available on. Works के ऊपर वो mention नहीं किया. Now, goods क्या होता है, services क्या होता है और works क्या होता है, that we are going to understand. Now, you can see here goods. In fact, this. सॉरी, ये देखिए goods, services and works. You can see what is meant by goods. Goods have a physical presence and they can be touched. Touched in the sense they are tangible. And what about services? No physical presence. They are intangible. और मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, hiring of services, hiring of catering services, hiring of manpower services. ऐसा मत बोलिए सर हम मैन को टच कर सकते, वो नहीं. सर्विसेज मतलब वी आर एक्वायरिंग द सर्विसेज. कैटरिंग सर्विसेज हम क्या करेगा, वो खाना प्रोवाइड करेगा. दिस इज बेसिकली सर्विसेज. And purchase of computer, purchase of laptop, purchase of AC, purchase of any furniture for that matter, all this comes under. और क्या बचा हमारा पास? Works. So works in the sense not only just civil works. जैसे हमने मंत्रालय का आर्डर में बताया कि only civil works करके लिखा. Works can be civil. Works can be horticultural in nature, agricultural work, horticultural work, electrical work. There are different types of works. Construction works. Okay. So as on date, works are completely outside the purview of each other. अब जब से करने की जरूरत है. Only the first two things: goods, कोई भी चीज खरीदना है, और services. If you want to hire something, I want to hire the service of videography or services of photography. That is service. Or all these services where manpower is involved. Hiring of stenographers, hiring of data entry operators, all are basically services. The preparation of DPR works or service? Preparation of DPR. Preparation of DPR is service. उसमें दो तरह के सर्विसेज है, मैं वो भी बताऊं. There are two types of services. One is consultancy services, another one is non-consultancy services. Okay, जहां बुद्धि का इस्तेमाल हो, wherever intelligence is involved, that is consultancy services. Hiring of GIS expert. आप लोग देखा होगा एडवर्टाइजमेंट में hiring of consultants. उसके लिए कैसे होता है? उनका इंटरव्यू करना होता है, उनका क्वालिफिकेशन देखना होता है, उनका एलिजिबिलिटी बनने के लिए उनका 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है. ये सब होके इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में सेलेक्ट करने के बाद we are going to take them as consultant. That is basically consultancy services. And hiring of manpower, like hiring of security guard, hiring of data entry operator, hiring of peon, ये सब किसके अंदर आता है? नॉन कंसल्टेंसी. ओके, जहां तक आपको बात है प्रिपरेशन ऑफ, आप लोग बताइए किसके अंदर पढ़ सकते हैं? इज इट कंसल्टेंसी वर्क या नॉन कंसल्टेंसी? तो सब सर्विस हो गया. वही बोल रहा हूँ, सर्विस में दो तरीका है ना, कंसल्टेंसी, सॉरी, कंसल्टेंसी सर्विसेज और नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज. So PPR preparation also comes under consultancy. वर्क्स के अंदर ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, सर्विस के अंदर दो क्राइटेरिया है, कंसल्टेंसी सर्विसेज, नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज. So hiring of manpower, basically hiring of manpower wherever the eligibility of the candidates is not going to be interviewed or is not going to be tested. Okay, all falls under non-consultancy services. Example: hiring of manpower, hiring of whatever example,
hiring of security guards, hiring of fuels, hiring of repair operators. इसमें क्या होता है बेसिकली थोड़ा बहुत ये होता है एलिजिबिलिटी 10 का पास या 12 का पास. Let's hiring of JX expert. This is non-consultancy services. Sorry, consultancy services. Okay, हम सीधा उसको हायर करते हैं, उसका भी गाइडेंस. And works remaining all are basically works. Okay, जो सिविल वर्क्स हो गया, इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया, प्लम्बिंग वर्क, व्हाटएवर, लाइक हॉर्टिकल्चरल वर्क हो गया, और कभी-कभी एग्रीकल्चरल रिलेटेड वर्क्स भी होता है. ये सब वर्क्स हैं. And this difference must be known by you. मैं इसलिए बता रहा हूँ कि most part of the departments in many parts of the government of India, still there is a lot of confusion between service and works. Okay, कुछ लोग मैन पावर का हायर करते हैं, उसको वर्क्स के अंदर देखा जाता है. That is wrong. जैसे कि सर पकड़ने से डिफरेंशियल दिया और इक्विवेलेंस फैब्रिकेटेड आउटसोर्सिंग हो गया. वो मतलब नॉर्मल तो वर्क्स ही होता है सर. तो लेकिन जो पार्टनर मतलब हायरिंग होता है वो दोनों मतलब एक ही होगा क्या? जैसे कि आउटसोर्सिंग और manpower outsourcing for preparation of DPR, or suppose such as recognitions are made or prosecutions are made, any type of salary. See, उसमें दो तरीका होता है. मान लो you are simply mentioning आपका you have prepared a scope of work. almost equal. You have prepared a scope of work. मान लो आपको DPR बनाना आपका काम है and उसमें कितना मैन पावर लगेगा that is not your business. वो तो simply हो गया सर्विस, सिंपली हो गया कंसल्टेंसी सर्विस. अगर आपने डिफाइन कर रहे हो उसके अंदर 4 लोग जेएस एक्सपर्ट चाहिए, 2 लोग जेएलएस एक्सपर्ट चाहिए, आप खुद ही डिफाइन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इसको वेजेस मिनिमम वेज के हिसाब से होना चाहिए. आप खुद ही सब डिफाइन कर रहे हैं. दैट इज गोइंग टू बिकम. सिंपली बोले कि मुझे बस डीपीआर बनाना है, मेरा आउटकम ये है. अब 10 को रखो या 20 को रखो या 1000 को, मुझे मेरा परव्यू नहीं है, बस मुझे काम चाहिए, मुझे बस सर्विस चाहिए. आपका डीपीआर प्रिपरेशन का वेज है, दैट इज गोइंग टू बिकम ओवरऑल. उसमें वेजेस वगैरह फॉलो नहीं करना. You don't have to follow the minimum wages. But if you define your services that I need this many number of JS expert, this many number of this thing, then it is become as per minimum wages. Okay. And जहाँ तक बात आ गई है कि can we consider this as a consultancy services or non-consultancy services? Again, it all depends on how you define. If you are defining that, आप मान लो उसमें 2 GS expert चाहिए. If you are keeping the qualification criteria, अब मान लो you are mentioning the contractor that 2 GS experts need to be enrolled for this particular service, and you are keeping a criteria that whomever you are keeping on the work, they should be intelligent. Then it is going to become consultancy. अगर आपने नहीं करता, अगर नॉर्मल छोटा मोटा वर्क हो गया, then it is going to become सिंपल. इनफैक्ट मान लो नॉर्मल छोटा मोटा वर्क जो भी होता है, इवन हमारे सीडल्स में एक इशू आ गया था, वी हैव डन हाइड्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन वर्क. So, you know, we have got so many site offices around the rivers, and they do take the measurements. Stage, they do measure, they do take the water well levels and discharge levels. So by mistake they have done, they have taken this as a work. उनको वर्क जैसे दिखा गया. इसके वजह से क्या हो रहा है? All over India, in fact, they have floated out a common tender for all the offices of the industry, and they have shown this as a work. And what has happened? It is attracting now a lot of court cases. उन्होंने क्या किया? मुझे बस मेजर, मेरा काम ये होगा, मुझे बस फ्लो वैल्यूज को निकालना या डेप्थ को नापना है दिन में 2 बार. अब 10 लोगों को या 20 लोगों को मेरा परिणाम, मुझे बस काम चाहिए. ऐसे दिखा के वर्क में दिखा और टेंडर फ्लोट किया. व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग? ही हैज हायर्ड सम पीपल. आदमी से हायर करना होगा कॉन्ट्रैक्टर. वो कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स को कितना सैलरी देगा, दैट इज नॉट योर आवर बिजनेस. क्योंकि हमने ऐसे बनाया है टेंडर. व्हाट इज हैपनिंग प्रैक्टिकली? ही हैज हायर्ड 2-3 पीपल and as per minimum wages he is supposed to be paid about 25,000, but he is being paid only 2,000 and 5,000 and 8,000 like this. And what these people do? Obviously they will go to media
they will approach the court, and it attracts a lot of repercussions. So that's why wherever manpower is involved, we have to be very, very careful. We have to either categorize them under the minimum wages, or we have to either categorize them under consultancy services. I think we could use that. So the manuals, in fact, before 2022 or even 21, there were various guidelines like CPWD works manual. Okay, you might have known, you might have referred, and there are Central Vigilance Commission guidelines. Okay, in some parts there are some guidelines from the Ministry of Finance itself. So there were different rule positions. Okay, so what Ministry of Finance has done in 2020, by consulting all the stakeholders like Central Vigilance Commission, CPWD, all the working departments like CPWD, Military Training Service, everything, they have prepared 3 documents: Manual of Procurement of Goods, a manual called Vice Manual. Similarly, they have prepared for works and for services. तीनों को 3 अलग-अलग मटेरियल मैनुअल रिलीज किया. अगर आप कोई भी डाउट आए, you can simply refer the concerned manual. If you are procuring goods in the sense supply, अगर जो भी इशू आएगा, not only just purchasing, उसको कैसे dispose करना, उसका प्रोसीजर भी इस मैनुअल में. Similarly for works, okay, वैसे भी CPW मैनुअल तो है. Okay, in fact, the CPW procurement, the manual for procurement of works is now completely integrated, including all the CPW works manual. जो भी works manual provisions होंगे इसमें देखिए आप. You don't have to refer as such CPW works manual now. अगर इसको refer करेंगे तो हर चीज इसी में मिल जाएगा. Then similarly we have another manual for procurement of services. Services, again 2 types: consultant services, non-consultancy services. I'll just show you. This is a procurement of goods. I think all of you could able to see. It is updated in 2022. It is released by Ministry of Finance. Okay, अगर कोई भी issue आएगा, you can see here there are n number of इस ट्रेनिंग में हम डिस्कस करेंगे केस टू केस, बट आई वुड लाइक टू इसमें हर चीज़ का डेफिनेशन भी दिया गया है. अगर कोई इशू आ गया कैसे डील करना है, प्रोक्योरमेंट साइकिल क्या है, सब दिया गया है इसमें. नीड असेसमेंट क्या होता है, इंटीग्रेटेड पैक्ट क्या होता है, एवरीथिंग. बिड डॉक्यूमेंट कैसे बनना है, फॉर्मेट क्या है, एडवर्टाइजिंग कैसे करना है, पेमेंट कैसे जाना है. यू विल गेट आंसर फॉर ईच एंड एवरीथिंग. इवन रेट कॉन्ट्रैक्ट्स, टन के कॉन्ट्रैक्ट, बल्कि मतलब एवरीथिंग इट इज देयर. You don't have to refer any other manual. Okay, so likewise, even for we have a manual for works. इसमें भी देख सकते हो. Here also it includes even legal aspects, everything. अगर सिंगल टेंडर आ गया, उसको टेक्निकल बिड्स खोल सकते नहीं खोल सकते, डिटेल डिजाइन कैसे बनाना है, उसका प्रोसेस क्या है, फंड्स को कैसे अप्रोप्रिएट करना है, एवरीथिंग. 2 स्टेज बिडिंग क्या होता है, सिंगल स्टेज बिडिंग क्या होता है, इट इज ऑल्सो देयर. एंड इन फैक्ट द सेम विथ द लास्ट वन सर्विसेज. इसमें जब आप ओपन करोगे, यू कैन सी हियर procurement of consultancy and other services. Other means non-consultancy services. इसका ऑफ ऑफ द मैनुअल में कंसल्टेंसी पर लिखा है. जब आप पीछे जाओगे, when you go
you can see I will show you other services का भी कैसा है. Chapter 8 onwards we have, you can see here chapter number 9, procurement of outsourcing services, outsourcing manpower, that falls under non-consultancy services. So page number 93 onwards we are having outsourcing services. Outsourcing service को कैसे hire करना है, process क्या है, सब है इसमें. Okay, so you can refer these 3 manuals. You will get answer from any of these 3 manuals. Then we are going to discuss now the procurement cycle. आप लोग बताइए, what is the first step in procurement cycle, or what could be the first step in the procurement cycle? सबसे पहले क्या करना होगा? सीधा एस्टिमेट. उसके पहले क्या करना होगा? नहीं, उससे भी पहले जेनवी इज लाइक द मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट. सबसे पहले आप कोई भी खरीदना हो, सबसे पहले वेरी गुड, सबसे पहले क्या करना होगा? नीड असेसमेंट. नीड असेसमेंट में क्या करोगे? नीड असेसमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट. One is assessment of quantity, another one is assessment of quality. Obviously mode of procurement. Assessment of quantity मतलब क्या होता है? नंबर. अगर मुझे कंप्यूटर करना है, कितना कंप्यूटर खरीदना? How many computers I need to purchase? Yes, I am purchasing 50 computers. 50 is your quantity. Quality क्या होता है? Brand name. Specifications. I am purchasing 50 computers. Okay, the 50 हो गया quantity. Quality means the specification. कंप्यूटर का रैम कितना होना चाहिए, मदरबोर्ड किसका होना चाहिए, कंप्यूटर रेजोल्यूशन कितना होना चाहिए, डिस्प्ले रेजोल्यूशन कितना होना चाहिए, हार्ड डिस्क कितना होना चाहिए, ये सारा चीजें है. एंड मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट कैसा, कौन सा मोड, जेल से खरीदना है या बाहर से. एंड मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट, शुड आई हैव टू गो फॉर टेंडरिंग और सीधा ले सकता हूं जेल से. Should I have to go for comparison or कैसे? ये पूरा चीज उसी में assessment. So your need assessment consists of basically 4 stages. Out of 4, the important 2 are quality and quantity assessment. बाकी mode of procurement and method of procurement अपना अपना है, ज़्यादा issue नहीं. And we have to be very clear आपको क्या चाहिए और किस तरह का, किस specification चाहिए. We have to be very clear at the first. उसके बाद क्या आना चाहिए? नीड असेसमेंट हो गया. उसके बाद क्या करना? रेट. सर्च करना वो तो हो गया अपने. उसके बाद जो करना जो भी हो गया, नीड असेसमेंट का सब कुछ, जेल से लेना है, बाहर से लेना है, ये सब इधर ही आ गया, मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट में आ गया. उसके बाद क्या है? अप्रूवल है. किस तरह के अप्रूवल से इधर? TS stands for technical sanction, AA stands for administrative approval, and EA stands for expert sanction. अप्रूवल लेना होगा. ये कौन सा अप्रूवल कब ले लेगा वो डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में. इसके लेके काफी सारा कंफ्यूजन है लोगों के दिमाग में, दैट आई एम गोइंग टू क्लियर. उसके बाद अप्रूवल लेने के बाद क्या करना होगा? अप्रूवल ले लिया हमने, उसके बाद सीधा ऑर्डर नहीं है, मतलब वी हैव टू गो फॉर publishing the bids. Okay, if the value is more, we have to go for publishing. Our value बहुत छोटा मोटा है, सीधा भी ले सकते हैं. पब्लिश करना है बिड्स को. उसके बाद बिड एवोल्यूशन, बिड्स को ओपन करना होगा कहना है. टेक्निकल जो भी होगा, टेक्निकल एवोल्यूशन करना होगा. उसके बाद फाइनेंशियल एवोल्यूशन करना होगा. उसके बाद ये एक्चुअली उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन, मतलब कोई L1 आएगा, उसको काम देना होगा. ओके, इफ दिस इज गुड्स वी हैव टू गिव द सप्लाई ऑर्डर. इट इज वर्क ऑर्डर देना होगा. इट इज सर्विस ऑर्डर दे दिया कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो गया.
और काम भी शुरू हो गया। अगर फिर सप्लाई आइटम्स बिल रेज करेगा, बिल सेटल करेंगे। और फाइनल स्टेप क्या होगा प्रोक्योरमेंट से? Does procurement involves only purchasing? सब हो गया, अवार्ड हो गया, आपने बिल सेटल भी कर दिया, सब हो चुका है। उसके बाद लास्ट और एक स्टेप बाकी है प्रोक्योरमेंट। वो सब हो गया, पेमेंट हो गया, मतलब रिसीव बिना रिसीव कैसे करो? द लास्ट स्टेप इज डिस्पोजल। आपने आइटम खरीद लिया। सी प्रोक्योरमेंट मींस नॉट only act of buying, there is another basic code that is involved is selling। 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, उसका सर्विस लेवल खत्म हो जाएगा, उसके बाद उसको डिस्पोज भी करना। ओके, कैसे डिस्पोज करना है कुछ लोग उसमें डाउट पूछ रहे हैं। इवन कैसे डिस्पोज करना है उसका भी गाइडेंस पढ़ा। गुड्स को कैसे डिस्पोज करना है, सर्विसेज को डिस्पोज से बात नहीं आता। वर्क्स का डिस्पोज की बात आती है। कोई बिल्डिंग बना दी डिस्पोज की बात आती है। डिमोलिशन बहुत रेयर है, जब उसका सर्विस खत्म हो जाएगा डिमोलिशन, उसके लिए ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है डिमोलिशन कैसे करना है। बट गुड्स का तो है कैसे स्क्रैप। सो दिस एंटायर साइकिल इज बेसिकली कॉल्ड प्रोक्योरमेंट साइकिल। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अप्रूवल्स। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था टेक्निकल सैंक्शन, एक्सपेंडिचर सैंक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। आप लोग बताइए टेक्निकल सैंक्शन मतलब क्या? I just want to know from you what is meant by technical sanction? इसके एस्टिमेट का, इसके प्रोबेबल कॉस्ट का और जो एस्टिमेट अप्रूवल होता है स्टैंडिंग कमिटी में, उसको जो आपका सी बॉक्स मतलब 18 बॉक्स कंपोनेंट के ऊपर जो मतलब फिक्स ये करता है, तो उसका हिसाब से आपको टेक्निकल सैंक्शन किया जाता है फॉर द पार्टिकुलर बॉक्स and particular sanction of the particular amount before the detailed estimate or anything. Why is the word technical has come? Finding the scope of the any other answer? टेक्निकल मतलब क्या है? जनरली कोई भी इंजीनियरिंग में टेक्निकल चीज क्या होता है? वो तो आपका जो फाइनेंशियल मॉडल है इज एक्सपेंडिचर सेक्शन। आई एम टॉकिंग अबाउट टेक्निकल सेक्शन। So take the name itself says, as you rightly mentioned, approval of the estimate along with the designs. अगर आप कोई भी बड़ा काम करना है, उसका डिजाइन ड्राइंग्स भी बनेगा, डिजाइंस होगा, ड्राइंग्स बनेगा, जब दोनों फाइनल हो जाएगा उसका कास्ट भी बनेगा। द कास्ट इज कॉल्ड एस्टिमेट, ड्राइंग्स, डिजाइंस। अगर ये तीनों का हम अप्रूवल दे रहे हैं उसको हम कहेंगे सैंक्शन। सो द नेम इटसेल्फ सेज, अगर मान लो छोटा मोटा वर्क है तो टेक्निकल सैंक्शन इज नथिंग बट सैंक्शन ऑफ सिंपली एस्टिमेट। एस्टिमेट के अंदर क्या क्या होगा? क्वांटिटी एज वेल एज एक के टाइम में सर ड्राइंग एंड डिजाइन नहीं सही है। then you know always under the different post and like simply saying what is meaning of technical। ये कब लेना है, टीएस कब लेना है, डिस्कस करेंगे। उससे पहले let us try to understand what is the meaning of these three words। टेक्निकल सैंक्शन टाइम में पूरा एस्टिमेट अप्रूवल होता है, डिजाइंस, ड्राइंग सब उसी टाइम में होता है। इसलिए टेक्निकल सैंक्शन टाइम you don't have to take the concurrence of finance officer or accounts officer because this is completely technical। जो भी इंजीनियर से वो लोग चेक करेंगे डिजाइन्स को जो भी है। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द रोल ऑफ फाइनेंस यूनिट डज नॉट कंसिडर। नाउ द सेकंड पार्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मींस सिंपली गो अहेड अप्रूवल, काम करना है नहीं करना है, सिंपल। और एक आ गया एक्सपेंडिचर सैंक्शन। ये क्या होता है? approval of the proposed expenditure under proposed budget।
आपको याद होगा whenever you are putting up something you always mention the expenditure is going to be charged under so and so budget. So taking approval for charging expenditure under so and so budget head is basically called expenditure. अगर आपने अप्रूवल लेने का टाइम अगर बजट हेड आपने मेंशन नहीं किया इसका मतलब आपने एक्सपेंडिचर सैंक्शन किया नहीं. अगर गलती से मिस हो गया दैट मींस दैट एक्सपेंडिचर सैंक्शन इज नॉट अलाउड. बस आपने पूछा. So generally in either in Brahmputra board or in all the organizations in the Department of Water Resources we do take administrative approval and expenditure sanction together. हमेशा दोनों साथ में लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है इफ यू वर्क इन द स्टेट गवर्नमेंट उधर एक्सपेंडिचर सैंक्शन अलग से मिलते हैं. हर एक स्टेट में क्या होता है कि ट्रेजरी यूनिट होता है ओके जहां से पैसा ये सारा अप्रूवल लेने के बाद फाइनल उनके पास वो क्या करेगा उनके पास पैसा है वो बोल देगा यस सोर्स बजट इतना पैसा है इससे आप चार्ज कर सकते हैं. एक्सपेंडिचर सैंक्शन अलग से दे देगा. But in central government, that situation won't happen because we have sufficient budget. Wherever sufficient budget, so we always take these two things. अभी मेरा क्वेश्चन ये है कौन सा अप्रोच कब लेना है आप ही लोग बताइए. Which approach should be taken first? Yes. और टेक्निकल सेक्शन बाद. उसका बाद एक्सपेंडिचर सेक्शन उसका बाद आप कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एक्सपेंस सेक्शन पहले लेने उसके बाद टेक्निकल सेक्शन. as per मतलब परसेंट ऑफ आवर डिपार्टमेंट पे लेने के बाद बजट गाड़ी के उससे क्या जो भी बजट होती है बजट एक्सपेंडिचर सेक्शन इसके बाद ही yes according to water board procedure we will take A first A and ES then yes. That's why sir I am asking whether during A doing a design required or not. मैंने वही बताया क्योंकि जो आप जो बोल रहे हैं प्रोसेस मान लो आपने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एक्सपेंस दे रखा है. एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल क्या है सिंपल उसको काम को गो अहेड देना. एक्सपेंडिचर सेक्शन क्या है सोर्स ऑफ बजट का अंदर आप लोग पता है बिना डिटेल एस्टिमेट बिना डिटेल ड्राइंग्स ये सब कैसे आप लोग दे रहे हो. Going to count to restrict our ES estimate to the EF. सी आप ही लोग बोलते पहले आप लोग एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ले रहे हैं एक्सपेंडिचर सेक्शन हो चुका है. सपोज दे हैव गिवन अप्रूवल फॉर लेट्स से 1 crore. ओके नाउ आप बताइए जब आप टेक्निकल सेक्शन मतलब क्या होता है उसमें डिटेल डिजाइंस होगा ड्राइंग्स होगा एकदम डिटेल एस्टिमेट. ओके जब तक डिटेल एस्टिमेट फाइनल नहीं होता है लास्ट में फाइनल नहीं होता है. बात तो सही है सर इसीलिए आप लोग का क्या होता है सर एक के टाइम में हम लोग का डिटेल एस्टिमेट बन जाता है सर मैं बता दूं कुछ एक पॉइंट मिसिंग है. आप लोग जो बोल रहे हैं वो सही तो है बट उसमें एक पॉइंट मिसिंग है. हां सर ए में ही हम लोग का डिटेल चला जाता है और डिटेल चला उसमें बहुत ज्यादा सब सैलरी वैलरी सब एक साथ निकाल. आप कह रहे हैं कि ये टाइम मतलब व्हाइल टेकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल डिटेल एस्टिमेट ऑफ सब ठीक है. वेलकम टू द पॉइंट. आपने जो बोला सही है बट हम जो नॉमेनक्लेचर यूज कर रहे हैं ना वो गलत है. I'll discuss about this bit later. I'll come back to this. हाँ ये देखिए सबसे पहले आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस. सबसे पहले क्या करना होगा नीड असेसमेंट. उसके बाद मैं जो भी इधर प्रेजेंट कर रहा हूँ ये मेरा मन का बात नहीं. जो भी प्रोक्योरमेंट मैनुअल में लिखा गया है उसी को मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ एज इट इज. उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ पीई which is also called as preliminary estimate or rough cost. उसके बाद आता है इन प्रिंसिपल अप्रूवल. इन प्रिंसिपल अप्रूवल मतलब आपने बता दिया कि मुझे एक ब्रिज बनाना है उसका मोटा मोटा कॉस्ट कितना होगा 5 करोड़ जो भी है मोटा मोटा वही सही है उसका वी आर गोइंग टू कॉल इट एज
इन प्रिंसिपल। उसके बाद आता है बेसिकली डिटेल्ड एस्टिमेट। किसी ने आपको बता दिया वो काम कर सकते हैं, उसके बाद आप डिटेल जा सकते हैं। अगर सबने सीधा डिटेल एस्टिमेट बना दिया, पूरा खर्चा तो पूरा मेहनत किया और बोल दिया कि काम, तो वो बोलेगा मैं नहीं कर रहा, करें सिंपली बोलेगा नो कर, आपको पूरा मेहनत करना होगा। तो कोई भी चीज पहले करने से पहले हम लेना होता है इन प्रिंसिपल अप्रोच। ओके, और उसके बाद डिटेल एस्टिमेट। जब डिटेल एस्टिमेट बनेगा, डिटेल एस्टिमेट का अप्रूवल होना चाहिए, तो क्या आना चाहिए उसका? टेक्निकल सैंक्शन। एक बार डिटेल एस्टिमेट टेक्निकल सैंक्शन हो गया, देन administrative approval and expenditure comes in. But a process, in fact, the word in principle approval, you might not have used anywhere in your business. Am I right? करने बता दो क्या इशू है? We don't use in principle approval as such. but ये कहाँ चला जाता है? In our central government departments, अगर मान लो मुझे कोई भी चीज नेक्स्ट ईयर करना है, I want to purchase 50 computers next year. अब अचानक नेक्स्ट ईयर अचानक 50 कंप्यूटर कर सकते हो विदाउट कीपिंग एनी बजट प्रोविजंस? नो, बजट में प्रोविजन रखना होता है। जो भी छोटा मोटा चीज कर सकते हो अलग चीज है, बट कोई भी चीज खरीदना है उसी साल के अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट मस्ट हैव बीन केप्ट अंडर बजट, इजंट इट? अगर आने वाला नेक्स्ट ईयर में हम जो भी करते हैं, नो 24-25 इज फॉर नेक्स्ट ईयर 25-26 नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कोई भी खरीदना है, उसके लिए क्या करते हो? पहले वी आर गोइंग टू प्रिपेयर बजट एस्टिमेट, इजंट इट? एंड यू नोटिस while preparing B, you do propose certain works. अगले साल में मैं ये काम करूंगा, वो चीज कर दूंगा, ये चीज कर दूंगा, कुछ प्रोविजन रखते हैं, उसके साथ कुछ अमाउंट भी लिखते हो, isn't it? इतना रफली होगा। You at that time during preparation of budget, you don't prepare detailed estimate. क्या करते हो? अमाउंट डालते हो, मुझे इतना कंप्यूटर खरीदना है, यार एक लैब बनाना है, उसका खर्चा इतना होगा करके मतलब मोटा मोटा फिगर्स डालते हो बजट। वो बजट जाए कहाँ जाएगा? यू आर गोइंग टू प्रपोज योर बजट, बजट मंत्रालय जाएगा, मंत्रालय सारे मंत्रालय के अंदर जितना भी आपने इसमें सबका बिल कलेक्ट करेगा एंड दे प्रिपेयर और कंसोलिडेटेड बजट, दैट बजट इज गोइंग टू प्लेस इन द पार्लियामेंट। और बजट कौन पास करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कब पास करेगा बजट को? वंस इट इज वोटेड बाय द पार्लियामेंट। वो दोनों हाउसेस को पास होने के बाद इट इज गोइंग टू अप्रूव बाय द प्रेसिडेंट। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो भी करना चाहते हो अगले साल, वो इनडायरेक्टली जब बजट आपको आ जाएगा, दैट itself says that in principle approval has happened. इसलिए by default in all our central government departments we don't use this formula, don't use in principle as such. जो भी बजट में होगा, हमने ऑलरेडी बजट में रखा है, इसका मतलब that in principle approval, बजट में अगर रखा है, अगर कोई मना करने का चांस नहीं होना चाहिए। कि हम उसका हमें ए और ईएस में होगा, तो प्रिंसिपल जो होता है वही ए और ईएस देता है साल का पहले में, जो इतना 5 करोड़ सबको खर्चा करना है, इस ऐसा प्रोविजन हम लोग मोटा रख के रखा है। जो प्रीलिमिनरी एक्चुअली बेसिक तरीका ये होता है, जब भी आप बजट प्रिपेयर करते हो ना, उसी टाइम होना चाहिए ये, मतलब दैट इज नॉट इन बना के देता है, जो भी आइटम चाहिए बिल्कुल यस वो सब का लिस्ट कंपेयर करके ए और ईएस होता है। उसके बाद मैं एक्चुअल प्रोसेस बता रहा हूं क्या होना चाहिए। एक बार वो इन प्रिंसिपल अप्रूव हो गया, मान लो बजट पास हो गया, बजट रिलीज हो गया, इसका मतलब आपने जो भी प्रोविजन रखा है, जो क्या है अपना रखा प्रोविजन, वो सब अप्रूव हो गया, दैट मींस इन प्रिंसिपल अप्रूव हो गया। अभी एट दिस स्टेज कोई इसको मना नहीं कर सकते, काम मत करो, तो आपने बजट में रखा है। अगर बजट नहीं होगा तो अब दूसरा क्या है? यू माइट हैव हर्ड अबाउट ईएफसी या एसएफसी, सुना है आपने? ईएफसी एसएफसी क्या होता है? एसएफसी मतलब क्या होता है? स्टैंडिंग फाइनेंस कमिटी, एंड ईएफसी
एक्सटेंडेड फाइनेंस कमिटी, दो कमिटी होती है। इस पर्पस क्या होता है? मतलब 0 से 500 से 100 स्कीम लग रहा है। जनरली बी किसमें होता है? एक साल, बी एक साल होता है। बट यू माइट हैव नोटिस ईएफसी और एसएफसी वो हमेशा कितना साल का होता है? आने वाला 3 साल, आने वाला 5 साल। ओके, कभी कभी कुछ स्कीम्स आ गए मान आपको ब्रह्मपुत्र बोर्ड में कुछ स्कीम्स बड़ा बड़ा वर्क्स है, सो आने वाले 5 साल में क्या क्या करना चाहते हैं? ओके, सो अगर आने वाले 5 साल का आपने बजट एस्टिमेट बना दिए, आने वाले 5 साल में क्या क्या काम करना चाहते हो, क्या क्या खरीदना चाहते हो, क्या क्या सर्विसेज ऐड करना चाहते हो, वो आने वाले 5 साल का आपने बजट एस्टिमेट बना दिया। उसी बजट एस्टिमेट को हम कहेंगे आइदर ईएफसी और एसएफसी। अगर सिर्फ एक साल होगा तो बाय डिफॉल्ट वी विल कॉल दैट। तो ईएफसी एसएफसी के क्या वो फर्क होता है? ईएफसी एसएफसी ईएफसी का लिमिट होता है 5 करोड़, सॉरी 500 करोड़ का, सॉरी एसएफसी का लिमिट होता है 5 करोड़ 500 करोड़, इसका 1000 करोड़, इसका ईएफसी। अगर ईएफसी भी ज्यादा हो गया 1000 करोड़ से भी ज्यादा हो गया कहां जाएगा? कैबिनेट। जब भी हमारा डीए रिलीज होता है, जब भी डीए बढ़ेगा, आप देखा होगा न्यूज़ में कैबिनेट ने अप्रूव दे दी। क्यों कैबिनेट ने कहा? जब भी कोई डीए आ रही है नोटिस करना होता है, जब भी डीए 3% बढ़ गया, जब सबका कैलकुलेट करोगे ना पूरा वैल्यू 1000 करोड़ से ऊपर है, उसका अप्रूव कौन देता है? और मंत्री का पावर कितना है? जो आइडिया होगा 46 मंत्री का नहीं तो 100 करोड़। बाय डिफॉल्ट कोई भी मंत्री को कोई भी वर्क के लिए पावर होता है। अगर 100 से लेकर 500 तक है कौन अप्रूव करेगा? मंत्री करेगा, बट मंत्री करेगा बट विद द रिकमेंडेशन ऑफ एसएफसी में कौन कौन रहेगा? सेक्रेटरी रहेगा, मंत्रालय में खुद का सेक्रेटरी रहेगा और फाइनेंस मिनिस्टर का भी रहेगा। अगर 500 करोड़ से ज्यादा है इस वर्ग भी कॉल्ड एज यस 500 करोड़ से लेके 1000 we are going to call that yes and which is going to approved by finance ministry। उसमें कमिटी में कौन कौन रहेगा? इसमें कमिटी में पूरा फाइनेंस सेक्रेटरी पूरा वही लोग रहेगा और हमारा मंत्रालय का जो भी रेस्पेक्टिव मंत्रालय का सेक्रेटरी। सर जैसे हमारे गैर है सर, वो पहले तो आपका ईएफसी हो गया मतलब 1000 मतलब था, तो अभी ऐसा हो गया कि जो कंसल्टेंसी सर्विसेज काम कर रहा था वो कुछ ड्यूटी मतलब लोकल प्रोग्राम वगैरह के लिए लेट हो रहा है, तो होने के लिए ये अभी जो रिवाइज कर रहा है सर तो वो मतलब अभी 1000 करोड़ एक्सीड कर, तो अभी मतलब जो ईएफसी मिला था तो अभी उसको नहीं आप 10% रिलीज होगा आने हम 10% हो गया, ये 10% दोबारा कमिटी के सामने लगेगा पर एक्चुअल एज पर एक्चुअल एस्टिमेट होगा, क्योंकि जो भी आप लोग अपने अप्रूवल किया था दैट इज प्रोजेक्टेड फिगर्स था, बट एक्चुअल में एक कंपोनेंट में ज्यादा हो सकता है, दूसरा कंपोनेंट कम भी हो सकता है। जब सब मिलाएगा तो टोटल एक्चुअल कॉस्ट इफ इट इज स्टिल मोर देन 1000 करोड़ दैट वाज द डिफरेंस। और नेक्स्ट मतलब रिवाइज करना है, रिवाइज करने के बाद वो नेक्स्ट मतलब एस्टिमेट मतलब हां दोबारा वो प्रॉपरली चार्ट मंत्रालय जाएगा, मंत्रालय से प्रोसेस होगा। तो ऐसा मतलब जो ईएफसी के ऊपर होगा मतलब 1000 करोड़ के ऊपर, हां वो कितना ऊपर जा सकते हैं अगर 10% तक अंदर तो 10 के ऊपर होने से वो होगा। सो मेरा कहने का मतलब ये है, so the concept of in principle approach we don't use as such because all the things we procure we always keep in the budget estimate। एक बार budget estimate पास हो गया that means it's a in principle। likewise अगर EFC SFC में रखा, EFC SFC मतलब इस our next आने वाले 5 साल के budget estimate, आने वाले 3 साल के budget estimate में
अगर वो प्रोविजंस है, अगर EFCSL से अप्रूव हो गया, that also stands, that also clearly means that particular thing has been in principle. होने के बाद हम क्या करना है, उसका डिटेल एस्टिमेट बनेगा, ड्राइंग जो भी है सब बनेगा और उसको टेक्निकल सेक्शन हो जाएगा. उसके बाद वी आर गोइंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड एस्टिमेट. कौन सा चीज में चार्ज करना है एग्जाम. Okay, so during A and ES, the actual cost comes into picture. Project almost near to reality. But here, during in principle approach stage, we don't get as such like accurate cost. We will simply prepare rough cost estimate. Okay, so that is the reason why in all our government, central government departments, our process starts from सीधा estimate बना देते हैं. और कुछ लोग क्या करते हैं, estimate बना देते हैं, उसी के साथ सब कट कर लेते हैं और सिंपली मेंशन करते हैं अप्रूवल. पता नहीं कौन सा अप्रूवल है, कॉमन अप्रूवल है. ओके, आप देखिए टेक्निकल सैंक्शन के लिए पावर बहुत ज्यादा दिया है. इफ यू लुक एट योर डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स, आई थिंक डेटा सर्विस को टेक नाउ. टेक्निकल सैंक्शन की बहुत ज्यादा पावर दिया जाता है, इवन लोअर लेवल. उसका रीजन ये है. इवन ये डबल लेवल पावर होता है टेक्निकल सेक्शन होना होता है. हम लोग एक्चुअली ऐसे वो यूज नहीं करते हैं. हम लोग विद डायरेक्टली एस्टिमेट एस्टिमेट वेरीफाई करके लेके और स्टक करके. अगर इफ यू गो विद एज पर प्रोसेस ना, वो एक्चुअली सैंक्शन करना होगा. उसके बाद जो भी है, इफ अवेलेबल ऑन ईच है, परचेज गुड्स है, जो कि अप्रूव होने के बाद अगर नहीं है, you will float a tender on CTP portal and बाकी सारा प्रोसेस सेम है. we are going to publish the bids, टेक्निकल एवोल्यूशन करेंगे, उसके बाद फाइनेंशियल एवोल्यूशन करेंगे, उसके बाद प्लेसिंग दी सप्लाई ऑर्डर और वर्क्स ऑर्डर. क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट गुड्स. गुड्स मतलब क्या होगा, हम सप्लाई ऑर्डर प्लेस करना होगा एंड वेरिफिकेशन ऑफ गुड्स रिसीव्ड एंड पेमेंट करना होगा. दिस इज द लास्ट स्टेज. This is according to manual. Yeah. But what will happen according to what will happen according to the procedure? Because we have we not follow such type. What you do here? We do first make A and after that GS. पहले उसके बाद A और ES पे प्रिंसिपल है. एक्चुअली ये वाला जो चीज है पहले भी इवन सीरियल्स में यही होता था, लेकिन शायद लास्ट ईयर से वी हैव गॉट वन कैंडिडेट फ्रॉम IRS एज डायरेक्टर. उन्होंने हम लोग में एक चीज आता है, देन वी हैव गिव द मैनुअल. द मैनुअल भी दिखाओगे एग्जैक्टली. इसमें सर हम लोग में एक ही चीज हो जाते हैं. CS के टाइम में हम लोग बाउंड हो जाते हैं कि ये अमाउंट के अंदर आपको TS एस्टीमेट बनाना है, चाहे उसका क्वांटिटी कम करना होगा, ये करना होगा, लेकिन हम लोग A अप्रूव अमाउंट क्रॉस नहीं कर सकते. वो कब आपने क्रॉस कब आएगा, आपने सप्लाई में मान लो वर्क क्या तरह आपने वर्क कार्ड दे दिया ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, ये और ये सेक्सी देगा. नो सर, बिकॉज़ वी आर टेकिंग A first. आप ले उसके बाद टेक्निकल सेक्शन यस में हम लोग डिटेल में चला जाएगा, तो अमाउंट को क्रॉस नहीं कर सकते. वो एक्चुअली अलग है. वो एक्चुअली अलग है. हम लोग वो जो इन प्रिंसिपल अप्रूवल होता है ना, एक्चुअली जो बोला इन प्रिंसिपल, हाँ वही ये होता है. लास्ट में ज्यादा कॉस्ट ज्यादा होता है उसका इन्वेस्टमेंट. सर हम लोग के लिए आप ही बताओ एक मिनट, आप जो बोल रहे हैं आप उसे अप्रूवल लेते हो, वो किस बेस पे लेते हो अप्रूवल? मोटा मोटा जो होता है सर उसके एस्टीमेट सर आपका जो है ना, यू आर एक्चुअली फॉलोइंग द प्रोसेस, यू आर टेकिंग प्रिलिमिनरी एस्टिमेट. आप बोल रहे हैं मोटा मोटा एस्टिमेट, एक्चुअली आप कोड यूज कर रहे हैं एक्चुअली प्रिंसिपल, आप कोड यूज नहीं कर रहे. नहीं वो उसके बाद ये आता है ये ऊपर पे उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप नहीं रहता. आप प्रोसेस जो कर रहे हैं सही है, बट ओनली थिंग इज नॉट प्लेसेस दिस. नाउ आर यूजिंग एडमिनिस्ट्रेशन द वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन फ्लोर पैसा डीपीआर जो हम लोग प्लेस करते हैं, डीपीआर का ES और A मिलता है डीपीआर. उसके बाद हम लोग TS एस्टीमेट बनाते हैं. तो डिटेल है. आज की डीपीआर का एग्जांपल, जो भी डीपीआर आप लोग बनाते हैं,
कोई भी मतलब कोई भी वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट का आप बताओ सबसे पहले कौन सा अप्रूवल मिलता है? ऐसे एक्सपेंसेस हम लोग का डीपीआर में सर एक लैंग्वेज सबसे पहले योर डीपीआर, कोई भी वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट का डीपीआर का टेक्निकली अप्रेजल होता है सीडब्ल्यूसी। टेक्निकली वो ड्राइंग सब चेक करेगा, वापस करेगा, कुछ और करेक्शन करेगा, ये चलता रहेगा 2-3 साल। जब वो डीपीआर पूरा टेक्निकल ठीक है तभी वो अप्रूवल के पास जाएगा। जब डिटेल एस्टिमेट सब हो गया, सब होने के बाद आपका वो एडमिनिस्ट्रेटिव एस्टिमेट सेक्शन you they are going to take approval from the interstate matters view. They are going to take approval from Ministry of Environment and Forest Maintenance. ये सब आने के बाद finally administrative inspection. And if you are not convinced with what you are doing, just imagine a big water resource project. जैसे CWC करते हैं, यही होता है। सबसे पहले टेक्निकल डिजाइन ड्राइंग टेन होने के बाद और उससे पहले क्या करना है, आपको उधर प्रोजेक्ट बनाना है। उसका अप्रूवल कौन देता है? स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर लेते हैं उधर प्रोजेक्ट बनना है। दैट इज बेसिकली इन प्रिंसिपल। और स्टेट बोलता भी है कि थोड़ा प्रिलिमिनरी एस्टिमेट बनाओ और उसको अप्रूव, थोड़ा बहुत रफ कास्ट एस्टिमेट, कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है, मुझे बड़ा डैम बनाना है, उसका रफ कास्ट एस्टिमेट कितना हो, 500 करोड़ 6 जो भी है, उसके ऊपर वो लोग टेबल एसेस वो देख लेगा। ये जो प्रोजेक्ट है हमारे काम का चीज होगा नहीं होगा, जो भी डिसाइड करेगा। होने के बाद दे विल गो फॉर डिटेल और डिटेल में जाएगा सेंट्रल वाटर कमीशन और सेंट्रल से देता है व्हाट इज हाइड्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट, सेंट्रल से अथॉरिटी के पास जाएगा, रेसिडेंस के पास जाएगा एंड दे विल स्क्रूटनाइज। ओके, जो भी इश्यूज होगा वो सॉर्ट आउट करके कस्टम चलता रहेगा। वंस इट्स टेक्निकली फिट देन ओनली द वर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड इंस्पेक्शन comes. The same goes for your normal work search. Only thing is बहुत छोटा स्केल में होता है, but we don't take as such technical sanctions up. हम उसी में लिख देते हैं एस्टिमेट जो भी आप अपलोड देते हैं ना, एस्टिमेट इज अपलोड, इसमें एडमिशन अपलोड सब उसमें चार्जेबल हेड भी लगता है। हाँ, चार्जेबल हेड भी लिखना होता है। इसमें सर इसका नेक्स्ट क्लास सिलेक्शन का होता है। सर उसमें एक चीज है कि ये स्टेप अगर हम लोग फॉलो करना चाहिए फॉलो करेगा तो सर उसमें डीपीआर में पीएस का जो पावर है, टेक्निकल सेक्शन का जो पावर लिखा हुआ है उसमें सर सेंटेंस ऐसा लिखा हुआ है, मान लीजिए सर डायरेक्टर का पावर है तो ₹30 लाख आपको ए अप्रूव करना है। अच्छा, ऐसे लगेगा, ठीक है। ये वो तो बी जो देता है ना, सी मैं खुद ही बोल रहा हूँ, सीडब्ल्यूसी में ऐसे होता था। बी जो मॉडिफाइड प्रोजेक्ट एस्टिमेट जो होता है इवन हमारे सीडब्ल्यूसी में ऐसे होता है। अब चाहे किसी बात में किसी हमारे ठीक है सर, कॉन्करेंस विद फाइनेंस टेक्निकल सेक्शन में कंट्रोल से जरूरत है। टेक्निकल में द वर्ड वो टेक्निकल पार्ट है, इंजीनियरिंग पार्ट इन्वॉल्व, इसमें कोई फाइनेंस का रोल नहीं। वर्क्स का देखिए सेम क्वांटिटी एंड क्वांटिटी, प्रिपरेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एस्टिमेट एंड इन प्रिंसिपल अप्रूवल। आप लोग कोई जेम से लेते हो, डू यू यूज द वर्ड टेक्निकल सैंक्शन एज सच? नहीं करते ना। जेम में आप जब आप प्लेस करेगा ऑर्डर वो पूछेगा एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, एक्सपेंस सैंक्शन, फाइनल स्टेज जेम में वही पूछेगा टेक्निकल सैंक्शन नहीं मांगते। फाइनेंशियल एक्सपेंस सैंक्शन कौन दी वो मांगता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल कौन दी वो मांगता है, वही चीज मांगते। क्यों मांगते हैं? क्योंकि दे आर द फाइनल स्टेज। टेक्निकल सैंक्शन नहीं मांगते क्योंकि बिना एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल टेक्निकल सैंक्शन बाय डिफॉल्ट मांगते हैं। अगर आप तो बात ही माने तो उसको मानना चाहिए, फाइनल अप्रूवल है। ओके, विदाउट ए पर्टिकुलर एस्टिमेट इज टेक्निकली सैंक्शन, देयर इज नो मीनिंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। ये है मेरा कहना। और इसमें भी सेम चीज है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल जाएगा, डिटेल एस्टिमेट, उसके बाद टेक्निकल सैंक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, एक्सपेंडिचर सैंक्शन। ऑब्वियसली दिस इज सेम, just similar to goods, there is no much difference. Technical evaluation, financial evaluation, and award of contract, contract management and payment. And services के देख लीजिए, सर्विस में क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। सर्विसेज मतलब मान लो आउटसोर्सिंग सर्विस, you want to hire some people, you want to hire let's say 5 data entry operators. I think you might have known
कोई भी सर्विस होता है उसका फर्स्ट टाइम अप्रूवल लेना होता है मंत्रालय से। ये पावर इवन ब्रह्मोत्तर पर भी किसी को नहीं। फर्स्ट टाइम अप्रूवल सेक्रेटरी को दिया गया फॉर ऑल दी ऑर्गेनाइजेशंस अंडर डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। सो वो कैसे लेगा? हमको चाहिए 5 लोग, रफ क्लास में बना था 5 लोग के लिए 1 साल कितना कास्ट हो या 2 साल कितना कास्ट हो, उसके हिसाब से मैंने प्रिंसिपल अप्रूवल लेता हूँ। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज इन प्रिंसिपल अप्रूवल और फर्स्ट टाइम अप्रूवल फ्रॉम दी इवन जीएफआर में लिखा गया है। ये हो गया, अप्रूवल दे दिया मंत्रालय ने, उसके बाद क्या होगा? डिटेल एस्टिमेट बनेगा। मुझे 5 लोग चाहिए 1 साल का, तो ऑब्वियसली बाइफरकेशन में जाऊँ, आने वाले 6 मंथ तक वीडी रेट्स इतना होगा, उसके बाद 10% बढ़ेगा, एग्जैक्ट एस्टिमेट बनाऊंगा, डिटेल एस्टिमेट बनाऊंगा एंड उसका अप्रूवल ले लूंगा मैं। We are going to call it as technical sanction, then administrative approval and disciplinary sanction. Obviously floating tender and EGM मंडा ये सब चलता रहेगा। तो फर्स्ट टाइम हो गया, मान लो आपने आउटसोर्सिंग मैन पावर को हायर कर दिया, फर्स्ट टाइम मंत्रालय ने अप्रूव दे दिया, आपने दूर भी कर दिया, नाटक का स्मार्ट कर दिया और 2 साल तक उनका सर्विस का खत्म हो गया। अब तो दोबारा करना है। So do you again send to ministry for approval? मान लो आपको 5 लोगों को हायर करना है, ओके, फर्स्ट स्टेप जब भी करना है मंत्रालय तक भेजना होता है, हर एक मिनिस्ट्री में काम आना चाहिए सब। सो मंत्रालय ने अप्रूवल दे दिया, सेक्रेटरी हैज गिवन अप्रूवल फॉर हायरिंग 5 मैन पावर, 5 लेस 5 डेटा एंट्री ऑपरेटर्स और आउटसोर्सिंग, तो ऐसा अप्रूवल दे दिया। आपने टेंडर फ्लोट किया, टेंडर 2 साल के लिए फ्लोट किया आपने, मैन पावर हायर कर लिया, 2 साल खत्म हो रहा है, तो आप दोबारा टेंडर को फ्लोट करना है। सो व्हेन यू आर गोइंग टू फ्लोट द टेंडर फॉर द सेकंड टाइम, उस टाइम आपको एस्टिमेट को कहां भेजना है? अगेन यू हैव टू सेंड इट टू मंत्रालय, यू हैव टू सेंड इट ओनली। उस टाइम कहां से स्टार्ट होगा आपका प्रोसेस? यहां से शुरू होगा या यहां से शुरू? आप लोग किए होंगे मैन पावर सर्विसेज को प्रीलिमिनरी जरूरत नहीं है, सीधा डिटेल से जाए। अब डिटेल एस्टिमेट होना बस, ये सारे ये तीनों स्टेप हट जाए। जैसे हमारा फूड्स एंड वर्क्स में कैसे तीनों स्टेप हट जाते, इधर भी तीनों हट जाएगा, सीधा शुरू करता है और एस्टिमेट अप्रूव होगा, उसके बाद टेक्निकल सैंक्शन होगा, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस सैंक्शन और ओके। आप कोई भी आर्डर देख लीजिए, इवन इफ यू आर नॉट कन्विंस्ड, आप कोई भी मंत्रालय का आर्डर देख लीजिए, हमेशा वो लिखता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस सैंक्शन अकॉर्ड, तो दैट इज फाइनल अप्रूवल कोई भी चीज। क्योंकि एक बार आप हायर अथॉरिटी अप्रूवल दे दिया, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ अगेन टेकिंग अप्रूवल एट लोअर लेवल, उसका मतलब भी नहीं बनता है ना, आपको लोअर लेवल पे देने का है। एक बार मंत्रालय ने दे दिया अप्रूवल, दैट इज कोई कुछ चीजें तो डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज फाइनल करता है, उन्होंने दे दिया अप्रूवल, देयर इज नो पॉइंट ऑफ अगेन टेकिंग अप्रूवल एट योर लेवल। जो भी लेना है आपको पहले लेना होगा। अगर यूज योर कॉमन सेंस आल्सो, अगर कोई भी चीज अप्रूवल अगर फाइनल अथॉरिटी ले रहा है, वो अप्रूवल लेने के पहले जो भी अप्रूवल लेना होता है लोअर लेवल में लेना होता है ना, दैट्स वेयर वी आर गोइंग टू कॉल टेक्निकल सैंक्शन, पहले लेना है, वो सब अप्रूवल होने के बाद सीधा फाइनल अप्रूवल होता है, एडमिशन अप्रूवल एक्सपेंडिचर सैंक्शन। सो दिस इज फॉर मैन पावर, बाकी तो सेम है। Now we are going to discuss about the remaining part later in the tomorrow class. Before that, I want to clarify about this part. The procurement procedure for different things. Goods and services, if available on EGM, these are the limits up to 50,000 through any of the available suppliers on the GEM. मीटिंग द रिक्वेस्टेड क्वालिटी स्पेसिफिकेशन डिलीवरी के लिए। ओके, जम से सीधा इफ इट इज पहले 25,000 था, अभी 50,000 हो गया। आप सीधा जिससे चाहे उससे सीधा ऑर्डर प्लेस कर सकते हो और आइटम ले सकते हो अप टू 50,000 या सीधा डायरेक्ट परचेज। एंड इफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज मोर देन 50,000 एंड लेस देन 10 lakhs, तो कंपैरिजन करना होता है। Okay, we have to compare any 3 manufacturers और उसमें जो लोएस्ट कास्ट ऑफर करेगा उसी का वर्क ऑर्डर दे सकते सीधा, नॉट वर्क ऑर्डर, आई मीन सप्लायर और सर्विस ऑर्डर।
आउटसोर्सिंग भी कर सकते हैं, हम तो किया है एक बार, तो ये बिडिंग सब ऑलरेडी कर सकते हैं। एक्चुअली हम बिड के लिए अननेसेसरी इसमें जाते हैं। ये बिड करने से ये बहुत हेक्टिक एक्सरसाइज है। मैं वो भी बताऊंगा बिड का एक्चुअली इसलिए होता है, मैं बताता हूँ। जब भी कोई आउटसोर्सिंग मैन पावर करता है ना, उसमें 300 या 400 बिडर्स आ जाते हैं। वो 300-400 बिड्स को प्रोसेस करने में आपका कितना निकल जाए। और द प्रॉब्लम इज वो 300-400 कर दिया आपने और कोई L1 आ गया और ये करने के बाद वो सीधा हाथ खड़ा करेगा, मैं नहीं। कभी कभी ये भी हो जाता है, जो भी L1 आएगा he may not supply the service, he may not respond to your phone calls. Actually ये है, if the values of the service are less than 10 lakhs, in fact हम एक क्लास में लाइव में दिखाएंगे, कोई बिड करने की जरूरत नहीं, सीधा जा सकते हैं। पर उसमें एक प्रॉब्लम है, we cannot define pre-define। अगर आपका ऑफिस सब कुछ हो गया ना, छोटा मोटा कंडीशंस हो गया ना, वो नहीं डाल सकते। जब में जो है वो इसको लेना, तो जो L1 आएगा सब L1 जो L1 आएगा उसको सीधा दे सकते हो, मतलब तो बिड सीधा जा सकते हैं। बट मेरा सब मतलब आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स है, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स वो नहीं डाल सकते, वो भी हम दिखाएंगे लाइव में। जैसे अभी मेरे 300-400 और बिड्स आ गए, अभी किसी ने किया ना, मेरे पास हो कर गया एक ऑप्शन आया था रिसेंटली। हम क्या करते हैं, हर चीज के लिए टू स्टेज बिडिंग में चला जाते हैं। एक्चुअली टू स्टेज बिडिंग में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए आउटसोर्सिंग, क्योंकि वो तो एकदम रेगुलर है भाई। टू स्टेज बिडिंग तभी चाहिए होता है इस कॉम्प्लेक्स where the rate reasonability is completely uncertain. We have to go for single cover, single stage bidding for procurement of land. मैंने रिसेंटली किया था, उसमें एक ऑप्शन दिया था जिसमें शायद मोस्ट ऑफ यू मे नॉट नो। वो क्या करेगा, इफ यू गो फॉर सिंगल कवर, मान लो 300-400 बिट्स आएगा, इधर तो पता नहीं, हमारा तो मिनिमम 400 है। उसमें क्या करता है, तीनों सबसे पहले काम होता है 400 बिल्डर का सारे डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करना। हर एक बिल्डर को सकते हैं तो मोटा-मोटा 300-400 पेजेस होता है, वो सबको डाउनलोड करना, उसको चेक करना, कितना हेक्टिक एक्सरसाइज होता है। उसका एक सिंपलेस्ट सॉल्यूशन है, गो फॉर सिंगल कवर बिडिंग सिस्टम। वो क्या करता है, तो 400 बिट्स में किसी 10 बिल्डर्स को उठा के आपको सकता है द फर्स्ट 10 फॉर्म्स वो लाइव दिखाएगा आपको। रिसेंट आया था, हमने इंप्लीमेंट भी किया था। किसी 10 को पकड़ के दे दे, उसे 10 को एवोल्यूट करना होगा, उसे 10 का एवोल्यूट करना होता है। और फाइनेंशियल रिपोर्ट भी आएगा साथ में, ऐसे नहीं फाइनेंशियल रिपोर्ट बाद में आएगा, दोनों फाइनेंशियल कोटेशन और उनके टेक्निकल जो भी आएगा और उसको एवोल्यूट करना है। और जो भी L1 आएगा उसको अवॉइड प्लेस करना है। अगर इफ L1 रिफ्यूजेस एट एनी कॉस्ट, वो क्या करेगा, तो दोबारा 10 और को निकाल के दे देगा, उसी 10 को दोबारा L1 एक बार करने से आपको बहुत ज्यादा टाइम सेव होगा। हमने इंप्लीमेंट किया है सिंगल कवर बिडिंग में, लाइव में भी दिखाऊंगा इनफैक्ट थर्सडे। वो दोस्तों जो 10 आएगा वो 10 को आपको इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, 10 को तो करना पड़ेगा, मतलब evaluating 10 is among 400 is much easier, वो कर सकते हैं। आपका रिस्क नहीं, वो खुद ही बोल रहा है, प्रोसेस जेबी करेगा ना, 10 नहीं सिलेक्ट कर देगा, 400 में 10 को सेलेक्ट करके आपको दे देगा, और जेब सिलेक्ट करके दे देगा, 10 प्रोबेबल बिडर्स करके दे देगा, जब खुद ही सेलेक्ट करके दे देगा, वो 10 को एवोल्यूट करना है। You don't have to evaluate after 400, टाइम सेव हो गया ना। तो उसका क्या नीचे होना सर, ये बताओ 10 लाख बिलो 10 लाख बिलो 10 लाख होने से क्या है, आप बिड कुछ नहीं करना है, सीधा कर सकते हैं। L1 करके जो भी L1 होगा उसको सीधा हट जाएगा, आज के जाएगा, नो बिडिंग करते। बट L1 कोई भी हो सकता है, आप इधर गौहती में हो, L1 तमिलनाडु में भी हो सकता है कि जम्मू कश्मीर का भी हो सकता है, आपका हाथ में कुछ भी नहीं हो, आप कुछ अलग से कंडीशन नहीं डाल सकते। बिड करने से क्या होगा, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट डाल सकते। हाँ, आपको जो आपका ऑफिस से कंडीशन डाल सकते हैं, लेकिन उसकी क्या कौन सा स्पेसिफिकेशन डालने से बिडिंग में ना, हाँ बिडिंग में अगर कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स आपका ऑफिस सो बिडिंग में करो। बिलो 10 लाख होने से सर कंपेयर डायरेक्ट कंपेयर कर लो, चलेगा 10 लाख का कंपेयर कर, हमने किया भी एक डेटा का ऑपरेटर था, उसके ज्यादा हाई नहीं कंपेयर कर ली, टाइम नहीं करना, उसी दिन हो गया। आज किसी को जरा से 15 दिन टाइम देना, बिडिंग का प्रोसेस, कस्टम बिडिंग का प्रोसेस होता है पूरा
वो पता है वो है पहले हमने भैया ट्राइंग टू गेट थिंग्स डन। ये ठीक है। ठीक है, वील क्लोज द क्लास नाउ क्योंकि आपका दूसरा क्लास है अभी। आई विल कंटिन्यू टुमारो एट द सेम टाइम आफ्टर लंच प्रॉब्ली। आई विल कंटिन्यू विद द सेम स्लाइड। क्या क्या इश्यूज है आप लोग देखा होगा। थिंग्स आर अवेलेबल ऑन जेम, कोई इशू नहीं। इफ इट इज लेस देन 10 लाख कंपेयर करके करना होता है, एंड मोर देन 10 लाख बाय डिफॉल्ट बिडिंग में जाना होता है। एंड इफ नॉट अवेलेबल ऑन ई जेम, और इसमें देखिए किसके लिए लिखा है, ओनली फॉर गुड्स। गुड्स का क्या हाल है, अप टू 50,000, पहले 25,000 होता था। अगर कोई भी चीज जेम में अवेलेबल नहीं है, और चीज अच्छा है। इफ समथिंग इज नॉट अवेलेबल ऑन जेम, हमारे लिए और अच्छा है। सीधा मार्केट में जाओ, सिंगल कोटेशन लेके आओ, सीधा ऑर्डर प्लेस करो। Up to 50,000. If that particular item is not available on, and if it is more than 50,000 and 5 lakh, there is one committee called LPC, Local Purchase Committee. 3 मेंबर का कमिटी होता है। कमिटी मेंबर्स क्या करेगा, मार्केट जाएगा, इंक्वायरी करेगा, ओके, जो जिस वेंडर ने लोएस्ट रेट में ऑफर करने का रेडी होगा उनसे कोटेशन लेके आएगा और कोटेशन के पीछे सर्टिफाई करेगा और सीधा उसी कंपनी को आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ये भी सिंपल है। सिंगल कोटेशन काफी है। एलपीसी को ये दोनों तरह सिंगल कोटेशन काफी है। बट 50,000 केस में क्या होगा, आप अकेले सर्टिफाई करते हो। इफ इट इज मोर देन 50,000 लेस देन 5 लाख, 3 मेंबर कमिटी होगा एलपीसी करके, दे हैव टू सर्टिफाई यस दिस इज द लोएस्ट रेट, हमको जो चाहिए वो आइटम है वो करके स्टैंडर्ड सेंटेंस है उसको सर्टिफाई करेगा और सीधा ऑर्डर प्लेस करो, काम करेगा। अगर सर्विस में अवेलेबल नहीं है तो सर्विस की बात ही नहीं है, वो गुड्स का बात करो। सर्विस में अगर अवेलेबल नहीं होता है वो भी बताओ। एंड इफ इट इज मोर देन 5 लाख, उसके लिए तो यू हैव टू गो फॉर ई टेंडरिंग ऑन सीपीपी। क्यों सीपीपी बोल रहा हूं, क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट इफ नॉट अवेलेबल ऑन। अगर जेम में अवेलेबल होगा तो हम वैसे भी करना है, जेम का प्रोसेस फॉलो। ये तो जेम का है, दिस इज आउटसाइड। ओके, नेक्स्ट, एंड दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वर्क्स एंड सर्विसेज। आप देखोगे पुराना स्लाइड में, इसमें इधर गुड्स एंड सर्विसेज मेंशन किया, इधर ओनली गुड्स मेंशन किया। इफ वर्क्स एंड सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल ऑन ई जेम, बेसिकली वर्क्स तो होगा नहीं जेम में, ओके, सर्विसेज कुछ होगा कुछ नहीं होगा। सो दोनों के कॉम्बिनेशन में इफ वर्क्स एंड सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल ऑन ई जेम, उसका क्या क्राइटेरिया है। फॉर वर्क्स कॉस्टिंग मोर देन 2 lakhs, ई टेंडरिंग इज मैंडेटरी। ई टेंडरिंग करना ही करना है। कहाँ करना है, सीपीपी पोर्टल में। फॉर वर्क्स कॉस्टिंग मोर देन 50,000 and less than 2 lakhs, work order through least bidder through NIT. There is one thing, tender means NIT, notice inviting tender. This is notice inviting. 50,000 नीचे में वो भी बताऊंगा। So from 50,000 to 2 lakh तक we can go for NIQ. उसके लिए टेंडर जरूरत नहीं है। सिंपल NIQ बहुत सिंपल होता है। आपको क्या चाहिए, कंडीशंस बस इतना ही होता है। आप पूरा लीगल प्रोविजन नहीं डाल सकते। टेंडर में क्या होता है, सेमी लीगल डॉक्यूमेंट टेंडर, उसमें लीगल प्रोविजन सब डालना होता है। अगर वो पेमेंट करेगा तो क्या करना है, सब होता है इसमें। एनएक्यू में इतना नहीं होता, सिंपल आपका रिक्वायरमेंट क्या है बस इतना होता है। ईएमडी फॉर्म में कुछ नहीं होता है एनएक्यू, एकदम प्लेन। आपका रिक्वायरमेंट क्या है, कोटेशन सबमिट करेगा, उसमें जो एलवन जो लोएस्ट कोट करेगा उसी का हम वर्क कर देना है। दिस इज फॉर 50,000 to 2 lakh। नहीं, ये छोटा मोटा वर्क के लिए। 2 लाख के लिए आप कहा आप कौन सा परफॉर्मेंस गारंटी लेते हो? हाँ नहीं, जरूर टेंडर के लिए चाहिए यार। 2 लाख के लिए कौन ईएमडी देगा? एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वर्क्स कास्टिंग लेस देन 50,000 एंड मोर देन 25,000। उसके लिए क्या करना होगा, इसको एनआईक्यू कॉल नहीं करना है, सिंपली मार्केट में जाना है, 3 कोटेशन कलेक्ट करना है। सिंपली मार्केट में 3 कोटेशन कलेक्ट करना है, उसमें जो जिसका प्राइस कम होगा उसी का आप सीधा वर्क ऑर्डर प्लेस कर सकते। एंड इफ इट इज लेस देन 25,000, ये बहुत ज्यादा जरूरत होता है। ये वाला छोटा मोटा जो भी काम होता है इसके लिए भी एक ही कोटेशन लेना होता है, वी कैन डायरेक्टली प्लेस। ये इनफैक्ट सीपीडब्ल्यू मैनुअल में क्लियर लिखा है,
for petty repairs and maintenance works of less than 25,000, you can directly get the work done from any of the available vendors. उनसे कोटेशन लेके आओ और सीधा ऑर्डर प्लेस। हम एनडब्ल्यू में करता है, डेली बेसिस में करता है, क्योंकि छोटा मोटा काम बहुत होता है। जो भी रिपेयर्स होगा, जो भी होगा, हम एक किसी वेंडर से कोटेशन लेके आता है, उससे अप्रूव लेता है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर द कंप्लीट अथॉरिटी फॉर दैट एज पर द CPW मैनुअल, दैट मींस इंजीनियर इंचार्ज। ये सब आप जिम में मत जाए, अगर जिम में जाओगे फंस जाओगे। हम लोग को अलाउ नहीं करेगा, क्यों? 3 कोटेशन चाहिए सबको। नहीं ठीक, 10-12 हज़ार का है। नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा, एग्जैक्ट प्रोविजन मैं दिखाऊंगा, डोंट वरी। वैसे भी मैं कल डिस्कस करने वाला इसके ऊपर, बट आई हैव स्लाइड आल्सो, 1 सेकंड। मैनुअल में है नहीं सर, मैं दिखाऊंगा, पैरा दिखा रहा हूँ ना, चिंता मत कीजिए। ये हमेशा ये करते हैं। हम तो करते हैं भाई, डेली बेसिस में। सी, अगर आप हर चीज जिम में जाओगे, कोई काम ही नहीं होता है। हाँ देखिए ये CPW पैरा 9.3.4 ये मैनुअल के पैरा। प्लीज सी हियर, petty maintenance and repair works up to 25,000 can be got executed by engineer in charge at his discretion। मतलब जिसको चाहे उससे काम करवा सकते, थ्रू हैंड रिसीव बट एट रीजनेबल रेट्स। बट एक ही होना चाहिए, वो रेट रीजनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तो 2000 का हो, 25,000 रुपए भी ऐसे नहीं होना चाहिए। वो कर सकते थ्रू हैंड रिसीव, सीधा कोटेशन लेके आएगा, काम करवाएगा और बिल से। हमारा एक काम है सर, ये दिस इज CPW वर्क्स मैनुअल पैरा। रिपेयरिंग में बेसी का सर, लेकिन रेट तो हम लोग ये वहीं पे पूछ सकते हैं, और वहाँ तो रेट सर वेरी करेगा, पार्टी का रेट तो ठीक है, the next executive will take the decision। See, if you feel that at this location these rates are reasonable, ठीक है, वो तो करते ही, हर जगह होना भी होता है। एक्सपेरिमेंट का वो रिस्क लेना होता है, और 25,000 में कोई देखना भी नहीं चाहिए। अब उसके लिए 3 कोटेशन जाओगे तो, एंड प्रैक्टिकल अब 3 कोटेशन बात ही करता हूँ, क्या करता है वेंडर एक ही होता है, वो दो फालतू कोटेशन बनाता है। फैक्ट ही है, ये तो हर जगह चलता है। जैसे कि हमारा एक रिपेयरिंग ऑफ सो जनरली अप टू 50,000 यही चलता है। अब इन मोस्ट ऑफ द ऑफिसेस यही चलता है। अगर 3 कोटेशन भी बताओ तो वही होगा प्रैक्टिकली। बट एक ही चीज इसमें ध्यान रखना होगा, रेट रीजन। ओके, वी विल डिस्कस टुमारो, क्योंकि मेरा टाइम हो गया है। ओके, अगर आपका ऑफिस में, अगर मैंने जैसे बताया था, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल अलग कॉन्सेप्ट चल रहा है। इफ यू वांट यू कैन रेफर द मैनुअल्स, वो हर जगह लिखा भी है, इवन जेब में हर जगह। द फाइनल अप्रूवल इज एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, एक्सपेंडिचर एक्शन, नॉट द इनिशियल अप्रूवल। मैं रहूंगा कल भी। सर आपका जी रिमोट दिया
मुश्किल में दे दिया हाँ